Hello and welcome to the SWS Classroom Chat. Today we have the privilege of having Smita Agrawal Madam, and we are going to be discussing how to deal with the chemistry examinations for ICSE Class 10 students. Smita ji, thank you very much for your time. First question is, किस तरह की गलतियां हुई? What are the common mistakes that students made in the pre-board examinations? And also, अगर हम देखें पिछले कई सालों से 4-5 सालों से, what are the common mistakes that their seniors had made that this batch of 2022 should avoid? Very good evening and namaskar and all the very best to all my dear students. And the question is very relevant because every year whenever we are appearing in ICSE class 10th chemistry examination, students are not able to score good marks just because of the silly mistake, you can say. So in this video today, I just want to discuss few points where the students can avoid those mistakes and they can have full 40 on 40 marks this time. So there are the few things which are very important in chemistry, like whenever you are writing any equation. So just students are just writing, okay, copper is reacting with H2SO4, but you have to mention whether it is in a dilute condition or is it in a concentrated condition. So in that case, that word dilute and concentrate is very, very important. Yep. The tip number 2 is, I have a lot of tips, so I will keep on counting. So tip number 2, whether in exam question it is asked to balance the equation or not, don't go for this. You should write down the balanced equation every time. वो कहते हैं ना एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए क्वेश्चन के साथ में. So if you are writing the equation, it should be always balanced. Yes. Especially in case of organic chemistry, the word alkane, alkene, alkyne, read these words carefully because these are the very minor alphabetical differences are there. Yeah. So rather than alkane, आपने alkene पढ़ लिया, alcohol को था, अल था, ऑल पढ़ लिया, तो एल्कोहल और एल्डिहाइड में एक बिग डिफरेंस हो जाता है. वो चीज हमें बहुत मतलब ध्यान रखना चाहिए. करेक्ट. सबसे पहले मैं इस बात पर आऊंगी कि whenever you get the question paper, students roughly count the pages. Oh, 6 pages का question paper, it is very lengthy. Students, the question is keep it in, it is frame according to you. It is frame in term of the, you can say a below average student. The child is able to finish the paper thoroughly, in a 1 hour time. टाइम मैनेजमेंट का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है केमिस्ट्री को लेकर. टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है. आइडियली आप अच्छे से पेपर करते हैं तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यू कैन फिनिश इन 40 मिनट्स. ओके, एग्जैक्टली. ओके, तो आपको जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम या 10 मिनट का इस बार रीडिंग टाइम दिया हुआ है, डोंट वेस्ट दैट टाइम बिकॉज बाय द टाइम यू गेट द क्वेश्चन पेपर, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो आपको नहीं आते हैं बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड इन अ सेट ऑफ लैंग्वेज. जैसे मुझे पूछा गया है एवरी टाइम इन माय क्लास, व्हाट इज योर नेम? ओके, नाउ in examination, the examiner is asking the same question and the examiner is asking, can you name? Right? तो वो चीज में ही डिफरेंस होता है, इससे बाहर कहीं से कुछ नहीं आता. तो वो क्वेश्चन को आप उस टाइम पर पढ़िए. और खासकर क्या होता है, जैसे हमने कोई कंप्यूटर प्रेजेंटेशन करते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन वो फाइल नहीं खुलता है, प्रेजेंटेशन के बाद खुलता है. इन द सिमिलर वे समटाइम द क्वेश्चन इज नॉट साउंडिंग इन दैट पर्टिकुलर टाइम, बट यदि वो आपको आता है तो आपके कॉन्शियस माइंड में वो लगातार चल रहा है. तो वो फाइल पेपर के बाहर ना खुले, पेपर के अंदर ही खुल जाए. वो तभी पॉसिबल है जब आपने रीडिंग टाइम अच्छा दिया है. करेक्ट. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेफिनेटली 5 मार्क्स क्वेश्चन होता ही होता है, दैट इज अ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन. Now in observation based question, generally students are like, खासकर जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और जिनको बहुत ज्यादा लिखने की आदत होती है, वो रिएक्शन भी लिखेंगे, वो रिएक्टेंट भी लिखेंगे, वो प्रोडक्ट भी लिखेंगे. भैया आपसे वो पूछा ही नहीं गया है. फोकस ऑन द राइट क्वेश्चन. आपसे ऑब्जर्वेशन पूछा गया, राइट डाउन द
correct relevant observation. Mark my word, relevant observation. Why I am saying relevant observation? Because sometime in an equation there are 2-3 products and every product have their own observation. But यदि वो नाइट्रेट का कंपाउंड है, आपका relevant observation नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर होगा, बाकी चिट-चैट पर नहीं होगा. Correct. If Can I continue? Yes, please continue. Okay. I am enjoying So it. if you are writing especially about the precipitate, तो बच्चे लिखते हैं white precipitate, but white, there are the different white color, chalky white, silvery white, curdy white. You need to be particular for that white color, right? जैसे आप अपने जीन्स के लिए पर्टिकुलर होते हैं ना कि नहीं जेड ब्लैक चाहिए और ये वाला ब्लैक चाहिए, इन द सिमिलर वे प्रेसिपिटेट भी बहुत पर्टिकुलर है कि वो चॉकी व्हाइट है, ग्रे व्हाइट है, ग्लासी व्हाइट है, एंड इट मस्ट बी मेंशन. It is soluble if it is soluble in a particular compound like NH4OH, excess of NaOH. वो नहीं मेंशन करेंगे तो नहीं मार्क्स मिलेगा. मार्केट कोई मतलब फंडा ही नहीं है कि आपने लिख दिया कि ये कलर है एंड इफ यू हैव नॉट मेंशन इट्स सॉल्युबिलिटी, वो नहीं मार्क मिलेगा उसके लिए. ये कंफर्म्ड है बच्चों. तो जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आइडियली तो टीचर्स ने क्लास में प्रैक्टिकल कराया होता है, और उसके लिए आई विल सजेस्ट in most of the books, even in Dalal, even in Selena book, at the last of all the chapters there are practical chemistry. So वो observation को अपने syllabus के हिसाब से find out करिए और वो observation को as it is याद करिए जो book में दिया हुआ है. Don't frame your own answer and all. Okay. One more thing, while writing the formula, sometimes the child get confused. NaSO4 आएगा, Na2SO4 आएगा. आपको डाउट है, बिल्कुल डाउट रखिए, अपने दिमाग में फ्रेम करिए व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फेट, यूज द क्रिस क्रॉस मेथड एंड राइट डाउन द करेक्ट फॉर्मूला. ओके, वो प्रैक्टिस आपको बार बार करना ही है. तो ऐसे बहुत सारे हैं, like isomers draw कर रहे हैं, तो if the question is how many isomers could be there, don't go for the right answer कि 4 होगा, 3 होगा. Try it and make a rough isomer and then come up to the correct answer. Okay, I have one small clarification here, Smita ma'am, that all this rough work, can they do it on the side? You would prefer कि वो उसी पेज पे राइट साइड पे वो सारा रफ वर्क कर लें ताकि एक तरह से एग्जामिनर को भी पता चले कि ओके दिस इज हाउ द स्टूडेंट हैज अराइव्ड एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. Exactly. When we are doing any kind of the rough work at the back or at the last sheet, again and again we are flipping the pages. Yes. That disturb you, that disturb the other student. Correct. Moreover, when we are doing the rough work on the same page, we are saving our own time. Correct. We are saving the chance of the mistake. Yes. Because when we are copying from the back, वो CO2 था, मैंने उसको 4 CO2 पढ़ा और लगा मुझे 9 CO2 है, वो कॉपी करने में मिस्टेक हो जाता है. When you are revising on the same page, तो वो आपका गलती वहां पे पिक हो जाता है. और मतलब many of the time यदि एग्जामिनर थोड़ा जेनरस है और आपने कोई मिस्टेक किया हुआ है और वो आपके रफ वर्क में विजिबल है, तो देयर इज अ चांस, आई एम नॉट सेइंग ऐसा होगा ही करके, बट देयर इज अ चांस कि वो एक जेनरोसिटी पे आपको एक वेटेज मिलने का probability तो है ही एटलीस्ट. करेक्ट, दे सकता है. करेक्ट. आई मीन देयर आर स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स एग्जाम, आई नो ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव राइट से लेफ्ट में डालने में भी गलती की है, तो ये गलतियां होती हैं. So it's, as you said, it's better that they do the rough work on the same page. की है. यदि आप मैथ्स के पेपर की बात कर रहे हैं, कल के मैथ्स के पेपर में एक वो 40 का 1040 का वैल्यू लेने में बच्चों ने इतना मिस्टेक किया है because they have not done the practice of reading of that log table. Okay, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए. फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, कोई भी जहां पे क्वेश्चन है, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो देयर इज अ क्वेश्चन, write down the condensed formula or write down the structural formula. Read, mark that question with a pencil. That condensed पूछा है, structural नहीं पूछा है, structural पूछा है, condensed नहीं पूछा है. It should be clear in your mind what is the difference between condensed formula and what is the difference between structural formula. Wherever the question is to draw the diagram, to draw the bonding, to show the particular structural formula, it should be very neat, very neat.
ये नहीं कि वो हाइड्रोजन में ही बॉन्ड लगा हुआ था, तो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ सिंगल बॉन्ड एंड वेदर इट इज अ डबल बॉन्ड। मतलब मैं तो हमेशा एक चीज कहती हूँ, एग्जामिनर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं लग रहा है, सो वी नीड टू मेक हिम कंफर्टेबल और हर कंफर्टेबल, और हमें उतना एलोबरेटिव आंसर लिखना चाहिए कि वो उनको भी कंफर्टेबली समझ आए, और देयर मस्ट बी नो चांस टू कट द मार्क्स। राइट, यू स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ मंत्रास। नाउ एज फार एज इक्वेशंस आर कंसर्न, जो कि काफी सारे हैं सेमेस्टर 2 के सिलेबस में, उनको पूरी तरह से याद करने का, और स्पेशली द डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, उसको किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं ताकि वो पूरी तरह से रिकॉल और रिटेन किया जा सके? वेरी गुड। In semester 2 there are the 5 chapters and 4 chapters are completely based on reaction and reaction. Yes. So here and there are the lot of equation. Correct. When there are lot of equation, there are the 4 compound HCl, H2SO4, HNO3 and ammonia. Yes. My suggestion is don't go for anything, just make your own comparative study. अपने चारों कंपाउंड का स्टडी बनाएंगे, इसका लेबोरेटरी रिएक्शन ये है, ये एसिड में ऐसे रिएक्ट करता है, ये मेटल के साथ ऐसे रिएक्ट करता है, ये बेस के साथ में नहीं करता है, ये कंडीशन में रिएक्ट करता है, ताकि आपने खुद ने बनाया हुआ है, खुद ने पढ़ा हुआ है, you can synchronize easily at the time of examination. Correct. Now there is in most of the equation out of 198 equation के लिए मैं यही कहूंगी कि there is no funda of learning and memorizing them. The funda is पहले आप खुद से कंपाउंड बनाने की कोशिश करिए कि क्या कंपाउंड बनने का प्रोबेबिलिटी है। वो कंपाउंड बनाने के बाद में अगेन एंड अगेन क्रॉस चेक फ्रॉम योर बुक कि मुझे लगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनना चाहिए था बट वो नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, एंड देन मार्क इट कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। एंड देन डू प्रैक्टिस। इक्वेशन को आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, और एवरी टाइम यदि पेपर से पहले आप पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, जरूर करिए। पिछले आपके पास में 5, 6, 7 इयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, आप उनको जरूर सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए और उनको चेक करिए उनके आंसर्स को। वी आर आस्किंग find out the compound which is not formed. We have not asked which is formed. Yes. Not formed. Important ore, chief ore. तो ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। खासकर आपने इक्वेशन के बारे में पूछा है, तो I would like to mention there are lot of equation where the certain conditions are mandatory. Particular temperature, particular catalyst, particular pressure is there. तो वो उनके मतलब भाई बहन है, उनके बगैर उनका परिवार नहीं चलेगा, तो वो इक्वेशन के साथ में आपको मेंशन करना कंपल्सरी है। ओके, तो ये तो हो गए एज फार एज इक्वेशंस कंसर्न। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी बेसिकली मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ चैलेंजेस आर देयर। एनी टिप्स, बिकॉज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर भी काफी हवा चलता है, यू नो, थोड़े स्टूडेंट्स डरे मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हवा क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच में हवा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन 3 का एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है, आप गलती नहीं करेंगे। Number 1. Number 2, you must understand what are the formula of each functional group. हाँ, यहाँ पर क्या चीजें याद रखने की होती है, क्या चीजें समझने की हैं। Say if I'm asking what is a functional group of alcohol, okay, उसका क्या सिंबल है, क्या फॉर्मूला है, तो बच्चे लिखते हैं OH. OH is no formula. It is single bond OH. It is single bond CHO for एल्डिहाइड। तो वो सिंगल बॉन्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बच्चे को एट द टाइम ऑफ क्लास पता होना चाहिए था, और नहीं है तो अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो यदि बुक में लिखा हुआ है एवरी टाइम सिंगल बॉन्ड, या आपको वो एक लाइन ही लग रही है, तो आपके मन में थॉट आना चाहिए ये लाइन हर बार क्यों ड्रॉ की हुई है, क्या मैं OH लिखूं चलेगा क्या? तो ऐसे वाले डाउट यदि आपको आ रहे हैं, आस्क विद योर टीचर एंड डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार तो सर कुछ भी चैलेंज नहीं है, क्योंकि उसमें आइसोमर पर एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म्ड है। वहां पर भी सिर्फ 2 ही आइसोमर हैं, ब्यूटेन एंड पेंटेन, तो वो आपको आइसोमर्स बनाने आने चाहिए। देयर विल बी अ 1 क्वेश्चन, इस बार वो 5 की जगह 3 मार्क्स का हो सकता है, बट जनरली 5 मार्क्स का नोमेनक्लेचर के ऊपर आता है। नोमेनक्लेचर में आप पहले आपको सारे रूल्स दिमाग में
रिकॉल करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन देना है, एन का सफिक्स एल्केन का सफिक्स क्या आएगा, डबल बॉन्ड का सफिक्स इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आइन आएगा, एल्कोहल है तो ऑल आएगा। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है बिफोर द एग्जामिनेशन। सो आइडियली 2-3 दिन का अच्छा खासा गैप है केमिस्ट्री के पेपर में, and there are the 5 chapters. If you divide 2 chapters in a day, even if you will do a thorough reading, then also you are able to get the good marks in chemistry. My last 2 questions, ma'am. One, MCQs को tackle करने में और subjective part को tackle करने में, does chemistry need a different strategy in terms of study strategy की दोनों के लिए पढ़ने और prepare करने के लिए अलग strategy की जरूरत होगी? बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। देखिए दोनों चीजें होती हैं when we are doing MCQ based question. Okay, the number one is sometime it become easy because options are visible. So you are able to recall. वो तभी फायदा है जब क्लियर कट एक ऑप्शन दिया हुआ है जो सीधे सीधे पढ़ता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो उसका आंसर ये होगा। When the options are very similar and when the options are very close, then you need to have a very fine study. तब आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड दैट टाइम यू मस्ट यूज द एलिमिनेशन मेथड. फाइंड आउट द 3 रॉन्ग आंसर, डोंट फाइंड आउट द 1 करेक्ट आंसर. करेक्ट. यस, आई थिंक दैट्स अगेन मैं आपको फिर से यही बोलूंगी बच्चों कि कंडीशंस कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, हॉट है, कोल्ड है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, मॉडरेटर है, वो सारे कंडीशंस वो आपको अच्छे से फ्रेम होनी चाहिए. बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है केमिस्ट्री में, लेकिन हाँ इक्वेशन बहुत सारी हैं. यदि आप पर्टिकुलर किसी इक्वेशन को बैलेंस करने में इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, फॉर अ टाइम लीव इट. For a time, leave it. Don't waste your time in balancing that particular equation. Then go for the rest of the question, ताकि आप उसको later on idea आ जाता है बाकी equations को देखकर कि I can use this strategy to balance this equation. तो आप तब भी कर सकते हैं. Correct. My last question, there is also a tendency, especially as you said, something you don't know how to balance an equation, you tend to go blank, and then some students, the anxious kind of students, एक तरह से panic mode में आ जाते हैं और फिर गलतियां ज्यादा करते हैं. What would you tell to such students so that they don't get into any kind of anxiety attack or panic mode? First of all, it's not sounding very good, but students can have a panic attack. पहली बात तो ये लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है. चिल. आपको यदि इस बार वाले बच्चे पे मार्क्स ना ला पाए तो फिर देखो सब कुछ इनके फेवर में है. हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बट बहुत सारी फेवरेबल कंडीशन भी इन बच्चों के साथ में है. इन एनी ऑफ द टाइम आप किसी भी सिचुएशन में, पैनिक सिचुएशन में नहीं आएंगे इफ यू हैव यूज्ड द 10-minute रीडिंग टाइम थॉरोली. क्योंकि वो टाइम पर आपको अच्छे से पता चल जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रैटेजी आई हैव टू फॉलो. एक टाइम पे आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि वो लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ा. क्वेश्चन एक भी आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं है. एवरी क्वेश्चन हैज कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक. हाँ, यहाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि अपनी टेक्स्ट बुक के जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डू दोस क्वेश्चंस डेफिनेटली. एंड if one particular question coming again and again in a one and another form, तो 10 बार आ रहा है 10 बार करिए, क्योंकि वो 10 उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. करेक्ट. तो ऐसी कोई भी पैनिक सिचुएशन में बी काम, ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. और उसके बाद में आपको डेफिनेटली आपके कॉन्शियस माइंड में, यदि आपने पढ़ा हुआ है तो वो डेफिनेटली आपके कॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, और वो फाइल आपकी तभी की तभी खुलेगी एग्जामिनेशन हॉल में. बिल्कुल ठीक है. फाइन. सो these are the formulas to do well as far as your chemistry examination is concerned. Many of you have done well in semester 1. I'm sure you can repeat the same performance in semester 2 as well. Smita ma'am, thank you very much for your time. Thank you very much for your time. Thank you, sir. Thank you, sir. Namaskar. Thank you.